Hello everyone, my name is Soumya Agrawal and I welcome you to this Equip Gate classes. So this is my second lecture of the subject material science. So let's crack the gate. So today we'll talk about the crystal structures and we'll talk about the crystal systems. Okay, so what are the various crystal systems are there? What is your unit cell and what is the different lattice parameters? Okay, so we'll talk about all these things. So let's start our lecture. So in these crystal structures, what is the need to study the crystal structure? Okay, so why we study? Because we'll get the properties of the materials. Okay, and these properties of the materials, these are related to your crystal structure. So मतलब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो properties like ductility, tensile strength, conductivity, etc. ये सब आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? It depends on the crystal structure. ठीक है. सो आप लोगों ने नाम सुना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्यूबिक टाइप ऑफ जैसे लाइक एफसीसी होता है, देन वी हैव बीसीसी, ओके, देन वी हैव एचसीपी, ओके. सो अब इसमें अगर हम डक्टिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं, सो एफसीसी हैज मोर डक्टिलिटी, okay, it has more ductility compared to BCC and BCC has more ductility compared to HCP. So this information you get from your crystal structure, ठीक है, based on your crystal structure. ये जो आपको information मिलती है कि आपका which cubic crystal system is having more ductility. Okay, so this is your ductility. Okay, so ये आपका है increasing decreasing order of the ductility. Okay, and next, why do we need to study crystal structures? So we get the knowledge about the interatomic bonding. ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो उससे पता चलता है कि मटेरियल्स में आपस में किस टाइप की बॉन्डिंग है, लाइक इट इज एन आयनिक बॉन्ड और इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड और इट इज अ टाइप ऑफ मेटालिक बॉन्ड. ठीक है, एंड हाउ डू यू फाइंड दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर? आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? सो वी हैव अ मेथड दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन. ओके, so we use X-ray diffraction. So now coming to the next. So what is a crystal structure? Okay, and how it is different from crystal lattice. यहाँ पर usually confusion हो जाता है crystal lattice में and crystal structure में. ठीक है, similar definition है but थोड़ा सा difference भी है इनमें. चलिए देखते हैं क्या होता है. तो जो आपका crystal structure होता है, it is a 3D periodic arrangement of atoms in the space. Make this red point. Okay, ये आपको याद रखना है that it is 3D periodic arrangement of atoms. Okay, and crystal lattice, it is 3D periodic arrangement of points in the space. Okay, यहाँ बात हो रही है आपका points की. Okay, यहाँ पे बात हो रही है atoms में. मतलब ये जो है आपका it is just a geometrical, okay, geometrical interpretation. अब इसमें अगर ये geometrical interpretation है, मतलब ये बोल सकते हैं points is what? Point is just you can say atoms or circle. Okay, you can say atom or circle. Okay, with r equals to 0, मतलब उसका जो रेडियस है वो 0 होगा. ठीक है, तो ये आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि some blueprint of some machine or some building. ठीक है, अभी ये आपका कैसा है, ये जस्ट एक हवा में है, ऐसा एक आपका हवा में बना हुआ है कि आपको कहाँ पर क्या आपको अरेंज करना, दैट इज गिवन बाय योर लैटिस. ठीक है, अब उस अरेंजमेंट में आपको क्या रखना है. ठीक है, अब वो अरेंजमेंट आपको पता है, रोज एंड कॉलम्स आपने कुछ अरेंज कर दिया है. ठीक है, कि ये चीज यहाँ पे रहनी चाहिए. ठीक है, जो भी रहेगा आपका, अब वो अरेंजमेंट आपको कैसे पता चलता है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्टिकुलर थिंग्स दैट हैज टू बी प्लेस्ड, है ना, जो दो ऑब्जेक्ट्स वहां पे रखने हैं उन दोनों के बीच में आपका कितना स्पेसिंग रहेगा. ठीक है, सो लाइक ये इस तरह से आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इस तरह से आपका ऐसा, अगर मैं रोज एंड कॉलम बनाऊंगा तो इस तरह से है ना. तो अभी ये क्या है, ये बस आपने ये बता दिया है कि दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. ओके, सॉरी, दो रोज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा एंड आपके दो कॉलम्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा. ये आपका D1 है, ये D2 है. ठीक है, जब इस तरह से आप सिर्फ ये बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं स्पेस में ऊपर, तो आप ये बोलते हैं कि दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, अब इस पॉइंट्स पे आपका क्या चीज रहेगा,
वो आपका बताता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इस पॉइंट्स में आपका अगर एटम्स आ जाता है तो ये बन जाता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हेन यू ऐड, ओके, अभी ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये मैंने बोला है दिस इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। जब इसमें आप कुछ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है एटम्स से। ओके, सो नेक्स्ट इसको समझेंगे इस डायग्राम से। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर वर्सेस क्रिस्टल लैटिस, क्या डिफरेंस होता है। सो अ लैटिस ओनली गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू अरेंज, ठीक है, मतलब आपको कैसे अरेंज करना है, क्या चीज अरेंज करना है, वो चीज आपको पता चलती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, ठीक है। कैसे एंड क्या अरेंज करना है, दैट गिव्स यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू अरेंज एंड व्हाट टू अरेंज, ठीक है। कैसे अरेंज करना है और क्या अरेंज करना है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको ये जानना है कि थिंग्स हाउ द थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड तो वो आपको बताता है क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो read this point. So crystal structure is lattice plus X. Now where this X, this is your known as basis or motif. Okay, इसका नाम या तो बेसिस होता है या फिर मोटिफ होता है। ये दिस इज नथिंग बट योर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब इस लैटिस के ऊपर में अगर आप एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप प्लेस कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। समझेंगे नेक्स्ट डायग्राम से। तो ये आपका इस तरीके से कोई लैटिस है, ठीक है। आपने यहाँ पे लैटिस को डिफाइन कर रखा है, मतलब आपने ये डिफाइन कर दिया है कि इसके आपस की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होगी, ओके, यहाँ पे और ये अपना कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये आपने डिस्टेंस आपने इस तरह से डिफाइन कर दिए, तो ये हो गया आपके लैटिस, ठीक है। अब इसमें आपको जो चीज प्लेस करना, अभी ये क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, ठीक है। अब इसमें अगर आपने इफ यू हैव एडेड दिस बेसिस, नाउ दिस बेसिस इज यू कैन से अ पेयर ऑफ अ जेली, ठीक है। तो पेयर ऑफ जेली है, पेयर ऑफ जेली ऑफ योर रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेड और ग्रीन आपका एक पेयर जेली है, तो वो आपने यहाँ पर इसको प्लेस करना है, ठीक है। तो प्लेस करेंगे तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट है, नीचे में 3 है, फिर नीचे में 4 है, तो यहाँ पे आपको ये एक मिल गया, ठीक है, एक पूरा पेयर, ये पूरा 2 पेयर, ठीक है, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। और नीचे में कैसे फिर आ रहा है, फिर एक पेयर, फिर ये 2 पेयर, फिर ये 3 पेयर, फिर उसके नीचे में कैसा आ रहा है, जैसे एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और ये 4 पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप जब इस लैटिस में कुछ पर्टिकुलर फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप इसमें ऐड कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, so let's define the basis. So basis, it is an atom or group of atoms associated with each lattice point. Okay, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइक कि एक लैटिस पॉइंट में जरूरी नहीं है आपका एक ही एटम हो, ठीक है। इट कैन बी मोर देन वन एटम ऑल्सो, लाइक दिस पेयर ऑफ जेली। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपने सिंगल जेली को यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ हर लैटिस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो किया नहीं आपने, आपने क्या किया है, दो जेली को या एक पेयर ऑफ जेली को आपने इंस्टॉल किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ बात करेंगे एटम की, तो हर लैटिस पॉइंट पे जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही एटम हो। सो लाइक दिस इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सो एल्यूमिनियम हैज लाइक वन एटम पर लैटिस पॉइंट, ठीक है। एक लैटिस पॉइंट पे एक आपका एटम है एल्यूमिनियम के केस में। यही बात करेंगे सिलिकॉन में, तो इसमें होता है लाइक 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका पेयर ऑफ जेली है, वैसे आप सिलिकॉन को मार सकते हैं कि 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट रहेगा। इसी तरीके से आपका एक हर लैटिस पॉइंट में ऐसा एक पेयर का आपका रहेगा, हर एक पेयर ऑफ एटम्स रहेगा आपका, ठीक है। And then the next is manganese, Mn. Okay, so manganese, it is like having 29 atoms per lattice point. Okay, तो मैंगनीज में कैसा है, 29 एटम्स है। ओके, और बात करेंगे अगर आप अमीनो एसिड्स और ऑल दिस थिंग्स, प्रोटीन्स की बात करते हैं, अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो इसमें कैसे होता है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ एटम, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एटम्स कहाँ पे, पर लैटिस पॉइंट, पर लैटिस पॉइंट। ओके, तो ऐसा थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि एक ही लैटिस पॉइंट पे आपको एक एटम मिले, ठीक है। इट कुड बी वन एटम, इट कुड बी मोर देन वन आल्सो। ओके,
So now how you can define crystal structure or crystal? So a crystal is defined as a lattice with the bases added to each lattice site. Okay, so basis atom or group of atoms. आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया हो क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, दोनों का डिफरेंस आपका यही है कि जो लैटिस होता है वो आपका जस्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप उस लैटिस में आप बेसिस को ऐड करके उसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन बना देते हैं। ठीक है, next is types of solids based on the atomic arrangement. Okay, so based on the atomic arrangement we have two types. First is crystalline solids. Okay, so in the crystalline solids the atoms or molecules these are arranged in the regular pattern. Okay, regular pattern मतलब आपका इसको कह सकते हैं like if it is like this, ठीक है, A is followed by B is followed by C, ठीक है, then C is followed by again A। तो इस तरह से आपका जो रेगुलर पैटर्न है ये इस तरह से आपका ऐसा रिपीट करेगा। मतलब अगर आपका स्टैंडिंग पॉइंट यहाँ कहीं पर है, ठीक है, आप ऐसा स्टैंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बी पे आप स्टैंड कर रहे हैं, अब आप इस तरफ भी देखेंगे तो आपको वही सेम चीज दिखेगा जो आप इस तरफ देखेंगे। हो सकता है आप ऊपर की ओर देखें तो वैसे ही कुछ दिखेगा जो आपको नीचे की ओर दिखेगा। तो आप चारों तरफ देखेंगे तो यू विल सी सेम काइंड ऑफ एटॉमिक प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी तरह के इसको बोलेंगे आप रेगुलर पैटर्न। नाउ विच रिपीट्स इन एवरी डायरेक्शन, जो आपको बताया है, चाहे आप लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, अप देखिए, डाउन देखिए। ओके, नाउ ये जो आपका पैटर्न होता है, जो आपका रेगुलर पैटर्न होता है, दिस शुड बी फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं, मतलब काफी लंबा आपको ये पैटर्न दिखना चाहिए। ठीक है, काफी बड़ा पैटर्न दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस खाली इस तरह से छोटा छोटा दिख गया, एबीसी और एबीसी दिख गया, उसके बाद में ये सी सी फिर ए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर लगातार एबीसी एबीसी, ऐसा एबीसी, है ना। तो इसको बोलेंगे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जितने भी आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सब होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, ionic solids. So these are all your crystalline solids. Okay, so next is your amorphous solids. Okay, so now in these solids the atomic arrangement in the lattice is random. Okay, random का मतलब like वही जो आपको बताया, ABC हो सकता है ऐसा हो, फिर ये C, फिर C, फिर A, फिर C, फिर B, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चल रहा हो, B, B, A, ऐसा कुछ कुछ भी हो। लाइक आप किधर भी साइड से देखेंगे तो आपको वो पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इफ यू मूव इन द लेफ्ट, यू मूव इन द राइट, इफ यू मूव इन द अप एंड इफ यू मूव इन द डाउन, ठीक है, कहीं पर भी आप देखेंगे आपको वो पैटर्न रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, या फिर अगर आपको रेगुलर पैटर्न दिखता है तो वो शॉर्टर पीरियड तक दिखेगा, या बोल सकते हैं शॉर्टर पीरियड तक अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो वो भी आपका हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स। सो एग्जांपल्स आपका हो गया है ग्लास। ओके, ग्लास इज योर एमॉर्फस सॉलिड। अब इसमें एक पॉइंट आता है, तो जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें होता है आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल सिमेट्री। ओके, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल सिमेट्री। ओके, एंड आपका जो amorphous solids होता है, okay, this amorphous solids they have no symmetry, they have no symmetry as such. Okay, no translation symmetry, no rotational symmetry. Okay, अब यहाँ पर एक जरूरी बात आता है कि amorphous solids को यूजुअली सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड, कई जगह आप इसको पढ़ते हैं that amorphous solids are also known as super cooled liquid. Okay, but this is just a myth. Okay, this is not an actual. So why it is not actual? So let me explain this. So यहाँ पे टर्म है आपका यूजुअली एंट्रोपी की हम बात करते हैं। ठीक है, अभी जो एंट्रोपी है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, और या फिर बोल सकते हैं एंट्रोपी किसकी कम होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, क्या है, ये है मेजर ऑफ रैंडमनेस। ओके, रैंडमनेस मतलब
चीजें जितनी ज्यादा आपकी रैंडमली अरेंज होंगी या रैंडम होंगी उतना ही ज्यादा एंट्रोपी होता है, ठीक है। जैसे आपका घर, आपका जो क्लासरूम है, अगर क्लासरूम में सब ढंग से एक एक चेयर बेंच जो है वो ढंग से अगर अरेंज है तो बोल सकते हैं क्लास की एंट्रोपी कम है, ठीक है। और वही चेयर और बेंच जो है वो ढंग से अरेंज ना हो, कहीं कुछ कोई चेयर पड़ी हो, कहीं कोई बेंच पड़ा हो, तो हम बोलते हैं कि वो जो क्लासरूम की जो एंट्रोपी है वो ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चूंकि आपका रेगुलरली अरेंज होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, तो इसकी जो एंट्रोपी होती है वो कम होती है। किसके कंपेयर में? एमॉर्फस सॉलिड्स के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर वही चीज सॉलिड में, तो सॉलिड का जो एंट्रोपी होता है वो आपका लिक्विड से कम होता है, लिक्विड का एंट्रोपी आपका गैस से कम होता है, ठीक है। बिकॉज सॉलिड्स में आपका जो बॉन्डिंग होता है वो क्लोज पैक्ड होता है, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, और गैस में आपका वेरी लूजली पैक्ड होता है। तो एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड is less than the liquid and liquid is less than the gas, ठीक है। बट बात करेंगे सॉलिड में ही अगर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी एमॉर्फस सॉलिड से कम होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि अगर आप इसको सुपर कूल्ड लिक्विड मान के चलते हैं, ठीक है, तो एक अब सुपर कूल्ड लिक्विड मान के चल रहे हैं और आप कुछ इसमें टेम्परेचर को आप रिड्यूस करते रहिए, ठीक है। नाउ विद टेम्परेचर आपका एंट्रोपी कम होता है, दैट यू नो, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम करेंगे एंट्रोपी अपने आप कम होता जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है, अगर उसको आप सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह मानते हैं, तो एंट्रोपी उसका एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे एंट्रोपी उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड से भी कम हो जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ पैराडॉक्स, कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि एंट्रोपी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड कैन नेवर बी लेस देन द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। बट अगर इसको आप सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह ट्रीट करते हैं तो एक ऐसे टेम्परेचर पॉइंट आता है कि एंट्रोपी ऑफ दिस एमॉर्फस सॉलिड विल बी लेस देन द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो दैट इज अगेन अ पैराडॉक्स। इसको समझते हैं इस डायग्राम से, ओके। तो ये जो डायग्राम है, ये है डायग्राम आपका वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड वर्सेस टेम्परेचर, ओके। सो यहाँ पर ये मान के चलते हैं, रेड लाइन से जो बन रहा है ये आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, जो कि अभी वो लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये मेल्टिंग टेम्परेचर Tm आया है। अब जैसे इसका आपने टेम्परेचर आप Tm तक लाए हैं और आपने उसको टाइम दिया है क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से, मतलब ये जो हो रहा है आपका, दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्मेशन के वजह से आपका तीनों चीज, वॉल्यूम, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, आपका रिड्यूस हो गया, ओके। क्योंकि आपका लिक्विड लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स था, क्रिस्टल फॉर्मेशन के बाद सॉलिड आ गया, तो वहां पे आपका जो मॉलिक्यूल्स है या जो एटम्स है वो आपका क्लोजली पैक्ड हो जाता है। अब यहाँ पे उसके बाद फर्दर आप कूल करते हैं तो विद टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे आपका सडन डिक्रीज हुआ था फेज चेंज की वजह से, अभी यहाँ पे आपका लीनियर डिक्रीज हो रहा है, ओके ना, लीनियर डिक्रीज इस तरह से आपका रेड से आप देख सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एमॉर्फस मटेरियल जिसको आप सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है, अब अगर वो इस तरह से आप उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो आपने इस तरह से कंट्रोल किया है कि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने दिया है, मतलब आपने जल्दी से इसको कूल कर दिया है नीचे की ओर, ठीक है, ताकि वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं हुआ। आपने टाइम नहीं दिया है एमॉर्फस सॉलिड या इस लिक्विड को कि वो क्रिस्टलाइज कर जाए, ठीक है। तो टाइम नहीं दिया है तो मतलब आप उसको कूल उसको कर रहे हैं, फर्दर आप उसको कूल करते जा रहे हैं टेम्परेचर के नीचे में, और इसी तरह से अगर आप इसको कूल करते रहे तो ऐसा एक टेम्परेचर आएगा दैट इज Tk, ओके, जहां पर इसकी जो एंट्रोपी है वो आपका यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है उससे ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड का जो आपका एंट्रोपी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एंट्रोपी आपका कम हो गया है सुपर कूल्ड लिक्विड का क्रिस्टल आपके दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड से, ओके। सो अब दिस इज योर पैराडॉक्स कंडीशन, ठीक है। तो इन एक्चुअल में आपका क्या होता है कि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं या एमॉर्फस मटेरियल होते हैं, वो एट अ गिवन टेम्परेचर Tg, इसको आप बोलते हैं क्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। सो ये Tg है, यहाँ पर आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है, ओके, डेल्टा एस, नाउ ये आपकी एंट्रोपी ज्यादा है यहाँ पर किसकी, एमॉर्फस सॉलिड की, कंपेयर टू
योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो बस इतना ही है कि आप एमोर्फस सॉलिड को कभी भी सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बोलेंगे तो उसकी जो एंट्रोपी है एट अ गिवन टी के टेम्परेचर इट में कम डाउन, ठीक है, एंड इट में ऑल्सो बी लेस देन योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो जितने भी आपके एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज कर जाते हैं ताकि इसका एंट्रोपी उतना नीचे नहीं आएगा। ठीक है, now what is your unit cell? So let's define a unit cell. So it is a building block of a crystal structure, so we can think it as a, you can say think it as a single brick in a brick wall। मतलब आपने ईंटे का कुछ एक वॉल बनाया है और फिर उसमें एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर ब्रिक को आप अगर अपना स्टैंडिंग पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लें और जहां पर भी आपको दिखेंगे तो आपको सब जगह ब्रिक्स ही दिखेगा। ठीक है, तो दैट कंप्लीट वॉल इट इज मेड ऑफ bricks, and so that one brick it will be act as a unit cell। ठीक है, so now we'll see which type of shapes in a crystal lattice can act as a unit cell। मतलब आपके जो भी शेप्स हैं किस कौन से भी शेप्स होते हैं जो आप यूनिट सेल की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या आप सारे शेप्स को जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे शेप्स हैं जिनको आप यूनिट सेल बोल सकते हैं? तो देखते हैं। तो for a unit cell this particular condition has to be satisfied that a repetitive arrangement of a unit cell can build up the whole crystal with no gap। okay, यहाँ पे पॉइंट है नो गैप, मतलब यूनिट सेल उसी शेप का बन सकता है जो आपको क्रिस्टल लैटिस को फिल कर दे विदाउट एनी गैप्स। ठीक है, मतलब कंप्लीटली फिल करे एंड देयर शुड बी नो वॉइड्स। एंड ओवर हियर यहाँ पे पॉइंट है दैट जो रिपीटेटिव अरेंजमेंट होगा वो सिर्फ ट्रांसलेशन के थ्रू होगा। ठीक है, ओनली ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन। ठीक है, तो जो रिपीटेटिव अरेंजमेंट है वो सिर्फ ट्रांसलेशन के वजह से होता है इस केस में। ठीक है, तो लेट्स सी दिस लैटिस डायग्राम। अब आप यहाँ पे मैं अगर कोई एक शेप लेता हूं तो लेट्स सी वी कैन कंसीडर दिस पर्टिकुलर शेप। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर शेप, ओके, रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप की बात करता हूं। ठीक है, तो ये आपका जो इस तरह से आपका आएगा। ओके, तो अब ये शेप अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं ना, ओनली ट्रांसलेशन लिखा है, तो आपका ये जो लैटिस भरना चाहिए तो वो कैसे भरना चाहिए आपका? ओनली थ्रू द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से ट्रांसलेट करता हूँ इस डायरेक्शन में तो मैं इस तरह से इसको भरने की कोशिश करता हूँ लैटिस को। ओके, फिर मैं इस तरह से भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इन के बीच में दो यूनिट सेल के बीच में देयर इज नो गैप। ठीक है, दैट इज देयर इज नो वॉइड्स। सो इफ आई मूव डाउनवर्ड्स आल्सो, ट्रांसलेशन में डाउनवर्ड्स भी करके देखता हूं, ठीक है, यहां पर भी अगेन आई एम गेटिंग द सेम थिंग। ओके, सो आई कैन से दैट स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर इज अ यूनिट सेल। ओके, ये आपका यूनिट सेल बन सकता है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट हियर, इफ आई टेक अनदर, ओके, अब यहाँ पे मैं सॉर्ट ऑफ आपका रोम्बस ले लेता हूँ पैरेललोग्राम शेप में। ठीक है, रोम्बस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कुछ ले लेता हूँ इस तरीके से। अब ये भी अगर मैं इस तरह से आपका ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये भी आपका आराम से फिल कर जा रहा है विदाउट एनी गैप। ओके, अब मैं अगर नीचे भी मूव करता हूँ देन अगेन यहाँ पे कोई भी गैप मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी गैप मुझे ऐसा नहीं मिल रहा। अब आप बोल सकते हैं कि ये तो गैप आ रहा है सर, इसका क्या? तो वो तो जिस इस जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ अ लैटिस ना, आप इस तरह से पूरा मूव कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो ये इस तरह से ऐसा फिल हो जाएगा, है ना, ये इस तरह से ऐसा पूरा फिल हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसा पूरा फिल हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इस साइड में कोई लैटिस नहीं है, आपके लेफ्ट साइड में कोई लैटिस नहीं है, पूरा लैटिस है, ऊपर भी है, आपका इधर राइट में भी है और डाउन में भी है। ठीक है, ऑल फोर डायरेक्शन इट हैज अ लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। सो आप ये बोल सकते हैं कि अभी जो रोम्बस है ये भी आपका यूनिट सेल बन सकता है। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं अगर कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने। ओके, अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं इधर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग सम गैप ओवर हियर। यहाँ पे मुझे कुछ गैप मिल रहा है। ओके, इफ आई गो डाउनवर्ड्स आल्सो, अगर मैं कुछ ऐसा डाउनवर्ड्स जाता हूँ, ओके, इस तरह से मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा गैप्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पॉइंट है आगे? ट्रांसलेशन। अब मैं अगर मुझे इसको ये गैप भरना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करके यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसा भरना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा मुझे इसको भरना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तब जाके ये यहाँ पे लैटिस पॉइंट्स को, लैटिस की स्पेस को भर पा रहा है। ठीक है, बट रिपीटेटिव अरेंजमेंट शुड ओनली फॉलो योर ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ यूनिट सेल। ओके, सो यूजुअली आपके जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, ओके, दीज आर ट्रीटेड एज योर यूनिट सेल। ओके, so this is all the story of the unit cell. So next is the lattice parameters of unit cell. So we have like 6 lattice parameters, 3 आपके edge lengths होते हैं और 3 उन edge lengths के बीच में जो आपके angles होते हैं। So first is the length of the edges. Okay, so length of the edges, like we have edge length A, then we have edge length B, and then we have edge length C. So ABC lengths of edges. Okay, and next is interaxial angles between them, okay, which is alpha, beta, gamma. So alpha is between B and C. Okay, then beta is angle between A and C, and gamma is an angle between A and B. Okay, so let me write alpha, ठीक है, angle between A and B, beta angle between B and C, gamma angle between, yeah, sorry, alpha is angle between, okay, ये थोड़ा सा wrong हो गया, let me correct. Alpha is angle between B and C, beta is angle between C and A, and gamma is angle between A and B. Okay, ये ऐसा अपोजिट एंगल्स के अपोजिट एज लेंथ पे आपका अल्फा बीटा गामा इस तरह से आएगा। ठीक है, so this is all about your lattice parameter. Okay, now based on this lattice parameter we will get crystal system. Based on the lattice parameters we'll get a crystal system. Let's see. So crystal structures are classified based on the different combination of lattice parameters and atomic arrangements. यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, एटॉमिक अरेंजमेंट एंड लैटिस पैरामीटर। ओके, नाउ दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज क्लासिफाइड, ठीक है, तो बेस्ड ऑन लैटिस पैरामीटर्स एंड एटॉमिक अरेंजमेंट, एंड व्हेन यू कंबाइन these different types of crystal structures, so they form crystal system. So different types of crystal structures are then grouped together to form various crystal systems. अभी जो ग्रुपिंग होता है इन क्रिस्टल सिस्टम का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का, है ना, ये ग्रुपिंग होता है बेस्ड ऑन लैटिस पैरामीटर। अभी समझते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से। ठीक है, तो आपके पास में जैसे कुछ n नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको आप जब ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके आप बनाएंगे क्रिस्टल सिस्टम को। ग्रुप करने का जो बेसिस बनेगा, किस बेस पे कर रहे हैं, तो दैट इज योर लैटिस पैरामीटर। ओके, सो कितने आपके क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं? सो वी हैव 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। ओके, 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, जिनको आप कंबाइन करके 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस कंबाइंड टू फॉर्म 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो ये जो 14 प्रकार की आपकी क्रिस्टल लैटिस होते हैं, इनको आप बोलते हैं ब्रवे लैटिसेस, जो आपके एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर, ब्रवे लैटिसेस। ओके, नोट डाउन दिस नेम, ब्रवे लैटिसेस। कितने टाइप के इसमें क्रिस्टल लैटिस होते हैं? 14 टाइप होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अभी इसको समझते हैं टेबल से। चलिए, तो ये है आपके टेबल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रिस्टल सिस्टम, देन दिस इज पॉसिबल वेरिएशंस। तो ये बात हो रही है आपके लैटिस वेरिएशंस की। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है लैटिस वेरिएशंस का। ओके, देन वी हैव एज लेंथ एंड एक्सियल लेंथ। सो ये दोनों हैं आपके लैटिस पैरामीटर्स, एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कितने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम है देखेंगे। तो फर्स्ट इज क्यूबिक, सेकेंड इज टेट्रागोनल, third is orthorhombic, fourth is hexagonal. Okay, fourth is your hexagonal,
5th is trigonal or rhombohedral, and 6th is monoclinic, 7th is ट्राइक्लिनिक। ओके, सो टोटल कितने सिस्टम है आपके पास में? 7 सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम आए हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार से इसको आपने ग्रुप किया है, ठीक है, या किस प्रकार से इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन सभी सिस्टम्स को? इन सबको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है, इनको आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन लैटिस पैरामीटर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो क्यूबिक का आपका एज लेंथ है, इट इज ऑल इक्वल, a equals to b equals to c, okay, and axial angles is alpha equals to beta equals to gamma is equals to 90 degree। so इसमें एंगल्स सब बराबर है, एज लेंथ सब बराबर है, तो दिस हैज मैक्सिमम सिमेट्री। ओके, ये इसके पास होता है आपका मैक्सिमम सिमेट्री। ओके, then we have tetragonal, यहाँ पे a is equals to b but not equals to c, and all angles are equal and equals to 90 degree। and then coming to orthorhombic, a is not equals to b is not equals to c, and again it is having same angles as your tetragonal and cubic। and then we can see for hexagonal, rhombohedral, monoclinic and triclinic। ठीक है, तो based on your lattice parameters, आपने different lattice parameters लिए हैं, उस बेस पे आपको ये 7 cubic system 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको निकल के आते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस लैटिस वेरिएशंस और पॉसिबल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस निकल के आए हैं, ये वेरिएशंस आपको निकल के आए हैं ड्यू टू एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि आपको जो लैटिस सिस्टम्स निकल के आएगा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम अलग है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग है, या बात करते हैं लैटिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो निकल के आ रहे हैं, ये आपके 2 वजह से निकल के आ रहे हैं। एक तो है आपका लैटिस पैरामीटर, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, लैटिस पैरामीटर। दूसरा किसकी वजह से है? दूसरा है आपका एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, तो एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से है। तो मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी एक सिस्टम की, जैसे मान लीजिए मैं क्यूबिक को ले लेता हूं। ठीक है, इफ आई टेक क्यूबिक, तो उसका आपका जो लैटिस पैरामीटर है दैट इज a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बट अब पर्टिकुलर क्यूब में पर्टिकुलर जो आपको क्रिस्टल सिस्टम निकल के आया, जो इसका आपका यूनिट सेल है वो क्यूबिक शेप में है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्यूबिक शेप में है, बट उस यूनिट सेल में आप एटम्स को कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, उस हिसाब से आपको डिफरेंट लैटिस वेरिएशंस निकल के आती है। इसको समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम से। ओके, सो जैसे ये अब आपका एक यूनिट सेल है क्यूबिक सिस्टम का, यहाँ पर आपका जो लैटिस पैरामीटर्स है a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, ये आपको लैटिस पैरामीटर इसमें गिवन है। ये एक सिस्टम क्या है? आपका क्यूबिक सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये लैटिस पैरामीटर तो आपको निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एटम्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस वेरिएशन निकल के आएगा। तो जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं अगर सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम वो होता है जहां पर लैटिस पैरामीटर तो आपका ये निकल के आए, और जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो आपका ऑल 8 कॉर्नर्स पे हो। ठीक है, मतलब व्हेन द एटम्स आर ऑन all the 8 corners, okay, then that type of lattice variation is known as your simple or primitive type। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक सिस्टम है, तो ये लैटिस वेरिएशन का क्या निकल के नाम आ जाएगा? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप सिर्फ कॉर्नर्स पे ना लेके, अगर आप कॉर्नर्स के साथ में एक सेंटर में भी एक आप ऐसा एटम को फिल कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस सेंटर एटम इज टचिंग ऑल द योर फेसेस। ठीक है, तो इस टाइप का आपका सिस्टम निकल के आता है, इसको आप बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, ओके, सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक है, सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? स्मॉल में बीसीसी बोलते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो एटम्स है वो ऑल 8 कॉर्नर्स में तो है ही, साथ में एक आपका एटम आपका बॉडी के अंदर में सेंटर में। ठीक है, सो दिस इज नोन एज योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर अगेन आपका a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक अरेंजमेंट अगर कुछ इस तरह से हो जाए कि आपका ऑल 8 कॉर्नर्स में तो है ही आपका, ओके, ऑल 8 कॉर्नर्स में आपके एटम्स हैं, एंड साथ में आपके
एटम्स आ जाए हर फेस पे, ठीक है, हर फेस के सेंटर में आपका एटम्स निकल के आता है, जैसे इस तरह टॉप फेस में, साइड फेसेस में, बैक फेसेस में, ठीक है, बॉटम फेसेस में, फ्रंट फेस में भी एक आएगा, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है। सो ऑल द 6 फेसेस विल हैव वन सेंटर एटम एंड ऑल द कॉर्नर्स विल हैव वन सिंगल एटम, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके क्यूबिक सिस्टम निकल के आता है, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्रिस्टल सिस्टम है आपका क्यूबिक, तो ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, सो इस तरह से आपको कैसे मिलेंगे? इस तरह से आपको एक क्यूबिक सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस वेरिएशन मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वापस आएंगे। सो इस तरह से क्यूबिक में आपके पास में 3 लैटिस वेरिएशन निकल के आ रहा है। पहला है प्रिमिटिव विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपल, जो अभी दिखाया आपको। देन वी हैव बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो क्यूबिक में इस तरह से आपको लैटिस वेरिएशन निकल के आ गया 3, टेट्रागोनल में आ गया है 2, ऑर्थोरोम्बिक में ऐसा आ गया है आपको 4, यहाँ पे एक एंड सेंटर्ड भी आ जाता है, ठीक है। देन हेक्सागोनल में एक आ गया है, देन आपका ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में एक है, देन मोनोक्लिनिक में 2 है एंड ट्राइक्लिनिक में भी एक है, ठीक है। तो अब ये कितने आ गए आपको टोटल? ये टोटल निकल के आए हैं आपको कितने वेरिएशंस ये आए हैं? वेट, लेट मी जस्ट डू दिस। ये निकल के आते हैं आपको टोटल 14, ठीक है, 14 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब इन 14 टाइप्स ऑफ वेरिएशन को हम बोलते हैं क्या? ब्रेवे लैटिसेस इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेवे लैटिसेस, ठीक है। तो ये कंबाइंड हो रहे हैं, किस बेस पे कंबाइंड हो रहे हैं? ये हो रहे हैं लैटिस पैरामीटर के बेस पे कंबाइंड हो रहे हैं, और ये फॉर्म कर रहे हैं आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सो 14 टाइप्स ऑफ लैटिस वेरिएशंस, इनको बोलते हैं ब्रेवे लैटिसेस। समझ गए? अब मेन बात आती है यहाँ पर कि अब ये सब क्यूबिक सिस्टम या ऑर्थोगोनल ये सब क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इनके आप एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बारे में कैसे याद रखेंगे? क्योंकि गेट आईएएस में सब यही पूछते हैं कि आपको पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम दिया होता है, पूछते हैं उसका आपको लैटिस पैरामीटर्स पूछते हैं, या कोई पर्टिकुलर लैटिस पैरामीटर दिया होता है, पूछता है कौन सा ये क्रिस्टल सिस्टम में आता है, ठीक है। तो याद करने की आपको एक अच्छी सी घुट्टी पिलाता हूँ, इसमें कोशिश अच्छी करूंगा मैं, होपफुली आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे आपका इनिशियल अल्फाबेट हर सिस्टम का, ठीक है। लाइक वील टेक सी, देन टी, देन ओ, एंड देन वी हैव इधर हेक्सागोनल, ओके, लेट मी राइट अगेन, हेक्सागोनल का हम लेंगे एच यहाँ पर, ओके। देन वी टेक ट्राइगोनल का टी, देन मोनोक्लिनिक का एम, एंड देन ट्राइक्लिनिक का टी। रिमेंबर दिस इज सी टी, ओ एस टी, एम टी, इस तरह से याद रखना, सी टी, ओ एस टी, एम टी। फर्स्ट टी इज योर टेट्रागोनल, सेकेंड टी इज योर ट्राइगोनल, थर्ड टी इज योर ट्राइक्लिनिक, ओके। सो अब ये चीज तो याद होगी आपको, ये एक आपको ऑर्डर याद हो गया, ठीक है, कि किस तरह से आपको सिस्टम का ऑर्डर याद करना है ना, अल्फाबेट्स। अब इसको हम याद करेंगे पहले एज लेंथ एंड एंगल्स के बेसिस पे, ओके। सो फर्स्ट 3 का कैसे है आपका? एंगल्स ऑल सेम है, ठीक है। एंड एज लेंथ कैसा है आपका? एज लेंथ है आपका a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ठीक है। अभी आपका इसका हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मैक्सिमम सिमेट्री है, क्यूबिक के पास में होती है आपके पास मैक्सिमम सिमेट्री, ओके। तो मैक्सिमम सिमेट्री है, तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। अब सिमेट्री कम होती जाएगी जैसे जैसे आप टेट्रागोनल की ओर बढ़ेंगे, ऑर्थोरोमिक बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। नेक्स्ट इज a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, ठीक है। इस तरह से आपकी सिमेट्री हो रही है कम, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा, अब गामा जो है ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। इजी टू रिमेंबर, आपने ये 3 चीज याद कर ली है। कैसे याद करिए? एज लेंथ किस तरह से सिमेट्री कम हो रही है क्यूबिक से ऑर्थोरोम्बिक, एंड एक्सियल एंगल्स आर ऑल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैसा है आपका? हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल। अब यहाँ पे आपकी एज लेंथ की सारी सिमेट्री ओवर हो गई है, तो अब ये आपका सिमेट्री यहाँ पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? उल्टा जाएगा, a इज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू c, कैसा जाएगा? दिस इज a इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। इस तरह से ये अभी उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी सिमेट्री फिर चेंज हो रही है, ओके। तो ये आपने 5 का ये दोनों भी याद रख लिया। बचे नीचे के 2, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये दोनों होते हैं, इनको याद कर लो, ये दोनों होते हैं नालायक, क्योंकि इनमें होती है सिमेट्री कम,
ठीक है, सिमेट्री कम है, नालायक है, तो ये दोनों के हो जाएंगे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, दोनों केसेस में सेम आएगा आपका। ठीक है, तो आपने सभी के एज लेंथ याद कर लिए। ये इस तरह से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इक्वल यहां तक जाएगा, उसके बाद में ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड लास्ट के दो दोनों नालायक है, तो इन दोनों में आपका एज लेंथ नॉट इक्वल्स होंगे। ओके, अब इसमें से बात करते हैं ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक तो नालायक है, लेकिन जो ट्राइक्लिनिक है वो सबसे बड़ा नालायक है, तो यहाँ पे लिख दो इसको नालायक। ठीक है, नालायक लिख दिया इसको, क्यों? क्योंकि ट्राइक्लिनिक हैज लीस्ट सिमेट्री। ठीक है, लीस्ट सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही एज लेंथ बराबर है, ना ही आपके एंगल्स बराबर है। तो ये आपको एंगल कैसे याद रखना है? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो आपने क्यूबिक के, टेट्रागोनल के, ऑर्थोरोम्बिक के आपने एंगल्स याद कर लिए। ओके, एंड आपने ट्राइक्लिनिक का एंगल याद कर लिया। 4 के एंगल याद कर लिए, बचा 3। ठीक है, अब आपको मैं ट्राइगोनल का भी एंगल याद कराता हूँ, ये जो ट्राइगोनल है। ओके, अब इसका क्या है, यहाँ पे इसका एज लेंथ तो ऑल इक्वल है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ओके, दिस इज योर ट्राइगोनल। सो अभी इसका एज लेंथ बराबर है, तो इसका एंगल्स भी हम बराबर मान के चल रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है, अब ये तो ठीक है, बट दिस शुड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अगर ये बराबर हो जाएगा तो ये क्यूबिक ना हो जाए, है ना, ये यहाँ पे है 90 डिग्री के बराबर, तो ये क्यूबिक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइगोनल इज अ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक इज अ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। तो एंगल्स तो बराबर हैं, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक नहीं है, तो आपने ये भी याद कर लिया। बच्चे हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। तो हेक्सागोनल मतलब आपका क्या होता है? इट इज अ हेक्सागन शेप। ओके, हेक्सागन शेप है, यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हेक्सागन शेप है, तो यहाँ पे मतलब ये कितना एंगल्स दिख रहा है आपको, ये सब। ओके, ये सब जो निकल के आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 120 डिग्री के आसपास है ना। तो यहाँ पे एक एंगल आपका क्या हो जाएगा हेक्सागोनल में? 120 डिग्री हो जाएगा। रेस्ट जो दो है वो आपके 90 डिग्रीज है। ठीक है, याद कर लिया आपने हेक्सागोनल को भी। अभी आखिरी में बचा मोनोक्लिनिक, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अभी इतने 7 में से आपको 14 आपको चीजें याद करनी थी, 14 वेरिएशन याद करने थे, स्टिल मैंने आपको कितनी चीजें याद करा दी है। ठीक है, बचा एक मोनोक्लिनिक, इसको आप बाद में याद कर ही सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको क्रिस्टल सिस्टम किस तरह से लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, ताकि आपको मैक्सिमम वो आप तरीके से उसको याद रख सकें। ठीक है, सो CT, OST, MT। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर। तो आज हमने क्रिस्टल सिस्टम के बारे में जाना है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल टॉक मोर अबाउट द FCC, BCC एंड योर HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में समझेंगे। इनका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो सब समझेंगे। सो आज अभी हम देखते हैं इनके ऊपर में कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हैं। So first is ESE 2001, प्लीज रीड इट। इसमें क्या पूछा है? टेक योर टाइम एंड रीड द क्वेश्चन। सो which of the following pairs of axis lengths ABC and interaxial angles alpha beta gamma represents tetragonal crystal system? ठीक है, टेट्रागोनल की बात हो रही है, CT, OST, MT। ठीक है, पहला टेट्रागोनल, दूसरा ट्राइगोनल, तीसरा ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये दिस इज अ टेट्रागोनल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है? A इज इक्वल टू B इक्वल टू C। नीचे में गए तो ये सिमेट्री कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमको यहीं तक जाना है, हमको नीचे से इससे मतलब नहीं है, हम ये भूल जाएंगे। ठीक है, ये है। और आपको पता है ऑर्थोरोम्बिक तक एंगल्स बराबर होते हैं। क्या होता है इसमें एंगल्स? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। यही तो है आपका लैटिस वेरिएशंस इन या टेट्रागोनल। अभी फाइंड करिए इसमें से। तो पहला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही गलत आ गया, ये नहीं है। A इज टू B इज नॉट इक्वल टू C, मैच कर गया। एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये है आपका, दो में ही मिल गया, बाकी दो तो ऑब्वियसली नहीं है। ओके, सो द आंसर इज योर B। ओके, नेक्स्ट वी हैव ESE 2007 क्वेश्चन। सो इट इज आस्किंग रोम्बोहेड्रल। ओके, रोम्बोहेड्रल के बारे में पता है। सो आपके पास में क्या है? CT, OST, MT, OHT, ओके, एंड MT। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक।
तो ट्राइगोनल के साथ में रोम्बोहेड्रल है, ये चीज बस याद रखना है। यहाँ पे जो ट्राइगोनल का नाम रोम्बोहेड्रल भी होता है। ओके, सो रोम्बोहेड्रल है तभी यहाँ पे आपको पता है कि जो गामा होता है वो सॉरी नॉट रोम्बोहेड्रल, दैट इज हेक्सागोनल ओनली, है ना। सो ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल निकालना है तो अभी इसके लिए आपको वापस से पूरा शुरू करना पड़ेगा सारी रामकथा, ठीक है। सो अभी यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। सो वी हैव, अभी हमको सिर्फ एंगल्स की बात करना है तो एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, पहले a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c। अब ये उल्टा चलेगा, a इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, ठीक है। एंड दिस इज a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। ओके, तो ये आपका आ गया क्या। अब मुझे याद नहीं था तो मैं अगर इस तरह से भी लिख रहा हूं तो भी मेरा काम हो जाता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें याद कर लीजिए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं होता है। भूल भी गए एक बार टेट्रागोनल या ट्राइगोनल में तो इस तरह से याद आ जाता है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल है, तो यहाँ पे आपको पता है एज लेंथ ऑल थ्रीज आर इक्वल। तो यहाँ पर एंगल के बारे में क्या जाना है, अगर एज लेंथ बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, बट ये क्यूबिक नहीं है, ये क्या है, ये है आपका ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, तो ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता है, ढूंढिए इसमें से क्या आएगा। सो ये तो आपका क्यूबिक का है, ए ऑप्शन गलत। एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यही है आपका ऑप्शन, ठीक है। रेस्ट दो आपके नहीं है। सो अगेन ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा हो, क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हो। यहाँ पे इजी टू रिमेम्बर है, इस तरह से अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे याद करने का तो आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं ये सब क्रिस्टल सिस्टम के लैटिस पैरामीटर्स को। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। सो इन दिस वी हैव अ ट्राइक्लिनिक, है ना। ट्राइक्लिनिक मतलब सबसे नालायक है, लीस्ट सिमेट्री है। लीस्ट सिमेट्री का मतलब क्या होता है, a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, and alpha is not equals to beta is not equals to gamma is not equals to 90 डिग्री। लीस्ट सिमेट्री है, यही आपके पास में है ट्राइक्लिनिक के लिए, ठीक है। ढूंढिए यहाँ पे, जहां पर भी इक्वल साइन आएगा वो आपका रॉन्ग आंसर होगा, जहां पर भी इक्वल साइन आएगा आपका रॉन्ग आंसर होगा, जहां पर भी इक्वल साइन होगा रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इक्वल साइन नहीं है, तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी। ओके, तो ये पहला वाला किसका है, ये पहला वाला है आपका क्यूबिक का, ये आपका है हेक्सागोनल का ना, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री हेक्सागोनल आ गया। एंड ये आपका अभी जो पिछला गया, ठीक है, विच इज योर ट्राइगोनल। ओके, आई थिंक नो दिस इज नॉट ट्राइगोनल, ठीक है, ये कुछ और है ना, ये कहीं से कुछ और आ गया है, दिस इज नॉट ट्राइगोनल। ओके, सो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम क्रिस्टल सिस्टम के न्यूमेरिकल्स को या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज like the video and subscribe the channel. Okay, so we'll meet in the next lecture with the lecture number 3. Thank you everyone.